Welcome to today's lecture. Today we will discuss some numerical problems based on motional electromagnetic induction and static electromagnetic induction. In our community class, we discussed the numericals based on magnetic flux, Faraday's laws and Lenz's law. Now we will discuss some numericals based on motional as well as static electromagnetic induction. The first numerical says, an aeroplane, we have an aeroplane in which the distance between the tips of the wings, you know aeroplane have the wings, the distance between the tips of the wings, on both sides of the aeroplane there are the wings, है ना? The distance between the tips of wings is 50 meters. जो aeroplane है उसमें जो distance between wings है वो कितना है 50 meters. Is flying horizontally. It's flying horizontally in this way, horizontally, with a speed of 360 kilometers per hour over a place where the vertical component of Earth's magnetic field is 2 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. The potential difference between the tips of the wings is, बेटा ये एक टिप है, एक विंग का टिप है, ये दूसरे विंग का टिप है, ये मानो wings, these are the wings, I am the aeroplane. The distance between this tip and this tip, that is 50 meters. ठीक है ना? तो आपका length जो है वो कितना है 50 meters. L जो है that's 50 meters. L is 50 meters. आपका तो जो एरोप्लेन है it's moving with a speed, आप speed कितना है शाबाश 360. आप नोट करते रखो ना. Length जो है length है distance between tips. Distance between tips is called length. वो कितना है 50 मीटर. आपका जो speed है एरोप्लेन का वो कितना है 360 किलोमीटर्स पर आवर. और ये एरोप्लेन जो है जिस वक्त जहां पर ये फ्लाई कर रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है शाबाश लिखो B is equal to 2 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. अब आपको क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स. पोटेंशियल डिफरेंस मींस EMF. चूंकि जो एरोप्लेन है इट इज इन मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें कभी कभी ये इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कम जाएगा कभी ज्यादा जाएगा. सो व्हाट काइंड ऑफ EMF विल बी डेवलप्ड? दैट EMF विल बी मोशनल EMF. मोशनल EMF के लिए आपके पास पता है फार्मूला E is equal to BLV. ठीक है ना? चलिए लेट अस डू दिस. L जो है दिस इज द डिस्टेंस between the tips of wings. Between the tips of wings ये कितना बेटा कितना है 50 meters. V जो है उसको बोलेंगे हम ये स्पीड ऑफ एरोप्लेन. V is equal to speed of aeroplane. This is 360 kilometers per hour. पिछले साल आपको सिखाया है जब किलोमीटर्स पर आवर हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में we have to multiply by 5/18. This is 360 multiplied by 5/18 मीटर पर सेकंड. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया लास्ट ईयर 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. यहां मल्टीप्लाई करो 18 1s are 18 2s are 36. This is 20 into 5. This is 100 meters per second. तो एरोप्लेन की जो स्पीड है that's 100 meters per second. जैसे हमने कन्वर्ट किया ना 18 2s are 36. अब जो B है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है 2 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोशनल EMF. ठीक है ना? यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है आपको. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा EMF, तो आपको EMF निकालना है. आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF E is equal to BLV. मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF E is equal to BLV. आप वैल्यू लगाओ. E बनेगा आपका B है 2 into 10 raised to power minus 4 into 50 into 100. आगे चलो भाई. ये है B E is equal to 2 5s are 10. ये है 10 raised to power minus 4 into 100 into 100. चूंकि 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये बना E is equal to 10 raised to power minus 4 into 10 raised to power 4.
क्योंकि देखो ये हो गया 10 रेज़्ड पावर 2, ये हो गया 10 रेज़्ड पावर 2, ये भी 100 हो गया 10 रेज़्ड पावर 2, ये 100 हो गया 10 रेज़्ड पावर 2, 10 रेज़्ड पावर 2, 10 रेज़्ड पावर 2 कितना हो गया बेटा 10 रेज़्ड पावर 4, ये निकलेगा आपको 10 रेज़्ड पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया 1 वोल्ट। ठीक है, सिंपल बच्चों आपने लगाया E इज इक्वल टू BLV, क्योंकि जो इस वक्त ए में बनेगा वो मोशनल EMF होगा, क्योंकि एरोप्लेन जो है इट इज इन मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात? चलिए, दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। दूसरी न्यूमेरिकल क्या है? ए बोट इज मूविंग ड्यू टू ईस्ट। हमारे पास एक बोट है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इन ए रीजन where Earth's magnetic field is 5 into 10 raised to power minus 5 Newton ampere raised to power minus 1 meter raised to power minus 1। तो बोर्ड जो आपका है वो उस एरिया में जा रहा है जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इतना है। चूंकि बोर्ड जो है वो मोशन में है, तो वो जो EMF बनेगा वो बनेगा मोशनल EMF। ड्यू टू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल द बोर्ड कैरीज अ वर्टिकल एरिया। इस बोर्ड पे खड़ा है, एक एंटीना लगा हुआ है, इस बोर्ड पे एक एंटीना लगा हुआ है, एरियल लगा हुआ है, उसका हाइट क्या है ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, वो कितना है 2 मीटर। एरियल की लेंथ कितनी है 2 मीटर। द स्पीड ऑफ बोट इज 1.50 मीटर्स पर सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द वायर ऑफ द एरियल इज, सिंपली यही लगाना है, E इज इक्वल टू BLV। आप लिखो B कितना है, ये जो पास कर वो है मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना दे दिया गया है, शाबाश बोलो कितना, एक ही बोलो, 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 क्या है न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, यही दिया गया ना, ये यही दिया गया 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। L जो है लेंथ ऑफ एरियल वायर वो कितना है, कितना है 2 मीटर, 2 मीटर बोला करो ना 2 मीटर। आपका V जो है दैट स्पीड ऑफ बोट वो कितना है 1.50 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है E, क्योंकि बोट जो है दैट इज इन द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा जो EMF पैदा होगा वो होगा मोशनल EMF। तो E होगा BLV, यही ऐसा ही क्वेश्चन। E होगा B किसके बराबर है शाबाश 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 इंटू L है भाई 2 इंटू वो है 1.50, तो E होगा बच्चों बराबर 2 5 हो गया 10, दिस इज 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 इंटू 1.50 डिवाइडेड बाय 100। शाबाश, ये बनेगा बच्चों E इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 इंटू बनेगा, देखो ये और ये कट गया, इंटू बनेगा 15/10, ये 10 भी ऊपर लेंगे, इंटू बनेगा 15/10, क्योंकि इसका और इसका 0 कट गया, तो ये 10 भी ऊपर लेंगे, ये बनेगा E इज इक्वल टू 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। जब इस 10 को हम ऊपर लेंगे ये बनेगा 10 रेज़्ड पावर माइनस 1, 10 रेज़्ड पावर माइनस 1, 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 हो गया 10 रेज़्ड पावर माइनस 5। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इसने मिली वोल्ट में रखा है, वहां पर हम लिखेंगे 10 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, क्योंकि इसने मिली वोल्ट में रखा है इसको। ये 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 नीचे लाएंगे, दिस इज E इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 वोल्ट। ये बनेगा E इज इक्वल टू, बच्चों देखो, बच्चों यहां देखो, ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100 वो होगा 0.15, 15 डिवाइड बाय 100 हो गया 0.15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 वोल्ट। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 वोल्ट होता है 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट कितना होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 वोल्ट। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 0.15 मिली वोल्ट, क्योंकि जब भी 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 आएगा तो आप उधर M लिखेंगे, दैट इज मिली वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। थोड़ा सा यहां फर्क है, अब मत लिखो, अभी डाटा ही लिखो, पहले सुनो। ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 4 मीटर। बच्चा यहां सुनो, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो L हमारा है 4 मीटर। मूव्स एट ए स्पीड ऑफ कितना 10 मीटर्स पर सेकंड।
ये जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है ये मूव करता है विद स्पीड ऑफ 10 meters per second. We had 10 meters per second. When the conductor makes an angle of 30 degree, when the conductor makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field of induction 1 Weber meter square, ठीक है ना, 1 Weber meter square, 1 Weber meter square, the induced EMF is Weber per meter square, Weber per meter square. Basically this is Weber per meter square, ठीक है ना. Then the induced EMF is, आप लिखो जल्दी फटाफट लिखो. डॉट E है लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है? 4 मीटर. ये कंडक्टर मूव कर रहा है विद स्पीड कितनी है? 10 मीटर्स पर सेकंड. एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. लेकिन ये कंडक्टर ऐसे कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाता है? 30 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. आपको निकालना है E, मोशनल EMF. ये कॉइल रोटेट करती है. इसके लिए एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा. BLV साइन थीटा. इसके लिए जब एंगल दिया गया तो ये क्या होता है? E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा. लगा वैल्यू. E हो गया, B है 1, L है 4, V है 10 इंटू साइन 30. ये बनेगा E इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू 1/2. चूंकि साइन 30 है 1/2. 2 1s are 2, 2s are 4. तो आपका E जो है वो बनेगा 20 वोल्ट. सिंपल. आपने ये फार्मूला लगाई, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा. ठीक है, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा. ठीक है. मैक्सिमम किस वक्त होगा? ये जब थीटा होगा 90 डिग्री. ठीक है, उस वक्त ये मोशनल EMF जो होता है ये मैक्सिमम होगा. ठीक है ना. दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 4 reads, a long solenoid has 500 turns. We have a solenoid and this solenoid has how many turns? 500 turns. यानी कैपिटल M जो हमारा है that is 500. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of solenoid is 4 into 10 raised to power minus 3 Weber. 4 into 10 raised to power minus 3 Weber. This is 4 into 10 raised to power minus 3 Weber. 3 Weber. The self-inductance of the solenoid is. The self-inductance of the solenoid is. उस solenoid में 500 turns है. We have a solenoid having 500 turns. तो N जो हमारा है that is 500. इस solenoid में हमने करंट कितना पास किया? 2 एम्पियर. एक solenoid है, उस solenoid की कुल टर्न जो है कितने बचा? 500. उस solenoid में मैंने कितना बचा करंट पास किया? 2 एम्पियर. ये 2 एम्पियर करंट हर एक टर्न में पास हो जाएगी. solenoid के हर एक टर्न में पास हो जाएगी. ठीक है ना. हर एक टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो बन रहा है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वेबर. भाई यहां देखो, ये आपका solenoid है, ये आपका solenoid है. इसके ये मैंने करंट 2 एम्पियर इसमें पास किया. ठीक है ना. इसके हर एक टर्न में जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वेबर. टोटल फ्लक्स जो इसमें पैदा होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स थ्रू 1 टर्न. फ्लक्स थ्रू 1 टर्न कितना है? 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वेबर. ठीक है ना. टोटल फ्लक्स कितना होगा? फिर टोटल फ्लक्स होगा n इंटू 5. ठीक है ना. पहले मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा. मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, total magnetic flux linked with solenoid, total magnetic flux linked with solenoid वो होगा n into 5. चूंकि बेटा एक टर्न में मैं फ्लक्स मानूंगा 5, n टर्न में क्या फ्लक्स होगा? n into 5. ठीक है ना. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है L, सेल्फ इंडक्टेंस. बच्चों यहां देखो,
आपको पता होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है L इंटू आई, होता है ना। तो यहां पर जो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यानी N फाई होगा, वो होगा L इंटू आई। यहां पर क्यों होगा N फाई? क्योंकि हमने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सॉलिनॉइड का निकाला है, ठीक है ना। नाउ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सॉलिनॉइड इज इक्वल टू L इंटू आई, जो कल पढ़ा आपने, L इंटू आई। बोलो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सॉलिनॉइड क्या है? N फाई। तो N फाई होगा बराबर फिर L इंटू आई। आपको क्या निकालना है? L। जरा L निकालो। L किसके बराबर आएगा? L आएगा N इंटू फाई डिवाइडेड बाय I। लगाओ वैल्यू भाई। L हो गया, N है 500, फाई है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय I जो है ये है वेबर, डिवाइडेड बाय I जो है वो है 2 एम्पियर। शाबाश। ये आएगा 2 1s are 2 2s are 4। ये आएगा L इज इक्वल टू 2 इंटू 500 हो गया 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -3 वेबर पर मीटर। ऊपर वेबर है, नीचे एम्पियर है। वेबर पर एम्पियर, नॉट वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर हो गया हेनरी, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या है? हेनरी। देखो ये है 1000, ये बनेगा L इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। ये बनेगा L इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 0 हेनरी। ये बनेगा L इज इक्वल टू 1 हेनरी, क्योंकि 10 रेज पावर 3 10 रेज पावर -3 हो गया 10 रेज पावर 0, तो आपको L बनेगा 1 हेनरी। फिर से देखो, N है 500, ठीक है ना, I है 2 एम्पियर। हर एक टर्म में 2 एम्पियर पास हो जाएगी। हर एक टर्म में जो फ्लक्स बन रहा है वो बन रहा है 4 इंटू 10 रेज पावर -3। हम देखेंगे टोटल फ्लक्स कितना है सॉलिनॉइड में, वो होगा फ्लक्स थ्रू वन टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, मगर टोटल फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू L इंटू आई, ठीक है। तो L होगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। टोटल फ्लक्स है N फाई डिवाइडेड बाय आई। N का वैल्यू दिया, फाई का वैल्यू दिया और आई का वैल्यू दिया, यू गेट द आंसर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। If a 5 volt is produced by a self inductance, सेल्फ इंडक्टेंस से कितना ईएमएफ पैदा हुआ? 5 वोल्ट्स। आपको पता है कैसे होता है? जब हम कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उसी करंट में जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है ना। तो आपका ईएमएफ जो है दैट्स 5 वोल्ट, ई जो है दैट्स 5 वोल्ट। व्हेन द करंट चेंजेस एट अ स्टडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। देखो करंट चेंज हो रहा है कॉइल में, जब करंट चेंज होगा कॉइल में तो वहां ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। उस प्रोसेस को आप कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जो आपने कल पढ़ा। जो करंट है दैट चेंजेस एट अ स्टडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, ठीक है ना। पहले इनिशियल करंट जो है दैट इज 3 एम्पियर, उसके बाद फाइनल करंट जो है वो है 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड। टाइम भी दिया गया है, कितना दिया गया है? शाबाश, 1 मिलीसेकंड टाइम दिया गया है, 1 मिलीसेकंड। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आपको L निकालना है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। दैट इज 5 वोल्ट, वही दिया गया है, ठीक है ना। हमारे पास DI है, DI होता है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। हमारा जो करंट चेंज इन करंट है बेटा, यहां पर करंट चेंज हुआ है 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो वो होगा चेंज इन करंट, हमारा बेसिकली होगा 2 - 3, है ना। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, ठीक है ना। वो बेसिकली होगा -1 एम्पियर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड ऑफ DI जो होगा वो होगा 1 एम्पियर ही, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे मॉड ऑफ DI, क्योंकि वो -1 एम्पियर निकला, ठीक है ना। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ DI इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मॉड ऑफ DI इज आल्सो DI, दिस एम्प्लाइज DI इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आपका जो टाइम दिया गया है DT वो है 1 मिलीसेकंड, वो है 1 मिलीसेकंड। मैंने आपको बताया जब भी वर्ड मिली आता है उसके लिए आप क्या लिखते हैं? 10 रेज टू पावर -3। जब भी वर्ड मिली आता है, मिली वर्ड पे आप 10 रेज टू पावर -3 लिखेंगे। दिस इज DT इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स। आपको बच्चों L निकालना है। आपको पता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो होता है E इज इक्वल टू L DI बाई DT। ये मैग्नीट्यूड है।
अदरवाइज यहां जरूरी माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये अपोज कर रहा है चेंज इन करंट। तो वैल्यू दे दो, चूंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड कितना ई कितना है, ई का कितना है 5 इज इक्वल टू एल इंटू डी आई कितना है भाई 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय डी टी कितना है 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा क्या बनेगा, शाबाश एल निकालो, एल कितना बनेगा आपके पास, शाबाश बोलो एल क्या बनेगा, एल बनेगा आपका ऐसे ऐसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे हम, एल निकालेंगे, एल हो गया E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, एल हो गया E डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, आपको इजी बनेगा वो, एल हो गया 5 डिवाइडेड बाय डी आई है 1 डिवाइडेड बाय डी टी है 10 रेज टू पावर -3, वो ऊपर चला जाएगा ना ऊपर, तो L बन गया आपका 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी, क्योंकि इसका यूनिट क्या है हेनरी, मगर इसके साथ 10 रेज टू पावर -3 है, जब 10 रेज टू पावर -3 है तो हम इसको M लगाएंगे मिली हेनरी, तो L बनेगा हमें 5 मिली हेनरी, क्योंकि 10 रेज टू पावर -3 वर्ड आया वहां पर M जाएगा, तो L बन गया आपको कितना बन गया L 5 मिली हेनरी। सिंपली E 5 वोल्ट है, डी आई है चेंज इन करंट, वो है 2 -3 वो है -1, क्योंकि हम यहां मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉड ऑफ डी आई लेंगे वो होगा 1 एम्पियर, तो dt जो है वो 1 मिली सेकंड दिया गया है, मिली का मतलब मैंने आपको बताया दैट इज 10 रेज टू पावर -3, दिस इज 10 रेज टू पावर -3। आपको इंडक्टेंस निकालना है, आपके पास फार्मूला पता है E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, L होगा E डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, यू पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। The current passing through a choke coil of 5 Henry. The current passing through a choke coil of 5 Henry. choke coil की क्या 5 Henry हो, क्या हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी गुड, तो आपका L है 5 Henry is decreasing at the rate of 2 ampere per second। जब एम्पियर पर सेकंड का बात होगी तो ये होता है डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी है 2 एम्पियर पर सेकंड। द ईएमएफ डेवलपिंग अक्रॉस द कॉइल इज, आपको ईएमएफ निकालना है, चलिए लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। 5 हेनरी, आपके पास एक चोक कॉइल है, उस चोक कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है असगर वो है 5 हेनरी, और इस कॉइल में जो करंट है दैट इज चेंजिंग एट द रेट, दैट मींस डी आई बाई डी टी, दैट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकंड, यानी डी आई बाई डी टी आपका कितना है 2 एम्पियर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई निकालना है, क्योंकि करंट चेंज हो गया, जब करंट चेंज होता है तो उस वक्त क्या ईएमएफ बनता है, अगर करंट चेंज नहीं होगा ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो सिंपली आपको पता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई होता है वो होता है L इंटू डी आई बाई डी टी, ई होता है L इंटू डी आई बाई डी टी, तो ई हो गया L कितना है बच्चों 5 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है 2, तो E आपका सीधे सीधे आया 10 वोल्ट, E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिए गए हैं 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2। हमारे पास 2 कॉइल्स है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों कॉइल्स जो है इनको हमने क्या रखा क्लोज टू ईच अदर, सो दैट द टोटल फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर। यानी यहां पर जो दूसरी कॉइल होगी उसने कंप्लीटली वाउंड किया होगा किस पे, फर्स्ट कॉइल पे, तब पहली कॉइल पे जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल से पास हो जाएगा। इफ M is the mutual induction between them, then M is equal to L1 L2, M is equal to L1 divided by L2, M is equal to L1 L2, M is equal to L1 L2 whole square। देखो जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं उस वक्त हम करंट जो है वो एक कॉइल में चेंज करते हैं, करंट जो है वो एक कॉइल में चेंज करते हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दूसरे कॉइल में बनता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे उस वक्त हम उसी कॉइल में करंट भी चेंज कर रहे हैं और उसी कॉइल में क्या बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, ठीक है ना। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन।
थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, जरूरत नहीं है। ये ऐसे डायग्राम, ये एक कॉइल है, ये ऐसे दूसरी कॉइल है, इसने इसको कंप्लीटली वाउंड किया है कल की तरह, ठीक है। जो पहली कॉइल नंबर 1 जो होगा, M इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं करंट करूंगा पहले कॉइल में चेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कॉइल में बनेगा? दूसरी कॉइल में। तो M होगा ना बराबर E डिवाइडेड बाई di1 डिवाइडेड बाई dt, है ना यार। M इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई, शाबाश, di1 डिवाइडेड बाई dt। भाई जब मैं करंट करूंगा पहली कॉइल में चेंज, ईएमएफ बनेगा दूसरी कॉइल में, तो मैंने लिखा M इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई di1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। इसी तरह दूसरी कॉइल में M होगा, अगर हम दूसरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे, ईएमएफ बनेगा फर्स्ट कॉइल में, तो आपको M होगा E1 डिवाइडेड बाई di2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। ठीक है बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करो भाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा M इंटू M इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई di1 डिवाइडेड बाई dt इंटू E2 इंटू E1 डिवाइडेड बाई di2 डिवाइडेड बाई dt। यहां खास ख्याल रखो, वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। यहां देखो, ईएमएफ दूसरी कॉइल में बना, करंट पहली में चेंज होगी, ईएमएफ पहली कॉइल में बना, करंट दूसरी में चेंज हो गया। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन सेम है, ठीक है, क्योंकि कल भी आपने पढ़ा M12 इज इक्वल टू M21, तो ये दोनों कोएफिशिएंट्स ऑफ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन होंगे, ये बराबर होंगे। नाउ एक कॉइल का जो पहली कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्शन है L1, दूसरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन है वो है L2, ठीक है। आपको पता है E1 होगा ना बराबर L di1 डिवाइडेड बाई dt। E1 अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे, उसी कॉइल में ईएमएफ, उसी कॉइल में करंट चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो आपका L1 होगा वो किसके बराबर होगा? शाबाश, E1 डिवाइडेड बाई di1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, M इंटू M हो गया M स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे, E1 के नीचे लिखेंगे ये di1 डिवाइडेड बाई dt इंटू E2 के नीचे लिखेंगे ये E2 डिवाइडेड बाई di2 डिवाइडेड बाई dt। अरे बच्चा ऐसे किया मैंने, E1 के नीचे लिखा di1 बाई dt, ठीक है, E2 के नीचे लिखा di बाई dt, कोई फर्क नहीं। इसको रखेंगे फर्स्ट। नाउ देखो बेटा, E1 होगा बराबर L1 di1 डिवाइडेड बाई dt। जब हम कॉइल नंबर 1 में करंट चेंज करेंगे, उसमें खुद भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। निकालो L1 का वैल्यू, L1 हो गया फिर E1 डिवाइडेड बाई di1 बाई dt। L1 हो गया E1 डिवाइडेड बाई di1 बाई dt, ठीक है। सिमिलरली जरा L2 बोलो, L2 किसके बराबर होगा? E2 डिवाइडेड बाई di2 डिवाइडेड बाई dt। अब देखो, E1 डिवाइडेड बाई di1 बाई dt, उसके बदले क्या लिखूंगा? L1। E2 di2 डिवाइडेड बाई dt, उसके बदले क्या लिखूंगा? Therefore first becomes क्या बनेगी? फर्स्ट M स्क्वायर इज इक्वल टू L1 इंटू L2, स्क्वायर हटाओ, M is equal to under root of L1 L2। This option is correct। very important न्यूमेरिकल। पहले म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन दे दी, फिर सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन दे दी, फिर सिंपली सब्स्टिट्यूट किया तो आपको M निकला अंडर रूट ऑफ L1 बाय अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। पानी का गिलास आप चलो। एक्सियल सोलेनॉइड्स, बढ़िया क्वेश्चन है। Two coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross-sectional area A equal to 10 centimeter square। देखो बच्चों, हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर, पाइप सिलेंड्रिकल होती है,
इस पाइप के ऊपर मैंने दो सॉलिनॉइड्स बाइंड किए, दोनों सॉलिनॉइड जो है वो है कोएक्सियल, उनकी जो एक्सिस है वो है सेम। तो जो पाइप का क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वही होगा सॉलिनॉइड्स का भी है, क्योंकि हमने इसको किस पे वाउंड किया, किस पे वाउंड किया, हमने इसको वाउंड किया ना किस पे, पाइप को वाउंड किया पाइप पे, ठीक है ना। तो ए दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड लेंथ दी गई है कितना है एल, शाबाश 20 सेंटीमीटर। इफ वन सॉलिनॉइड हैज 300 टर्न्स, एक सॉलिनॉइड के कितने टर्न्स है, 300 टर्न्स, एंड द अदर हैज 400 टर्न्स, एक के है 300 टर्न्स और दूसरे के क्या है, शाबाश, एक के है कितना 300 टर्न्स, दूसरे के है कितना 400 टर्न्स। आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन, आपको बोलना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। देखो बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑफ द सॉलिनॉइड्स वो है A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। जरा क्यों, 1 सेंटीमीटर होता है 10 रेज टू पावर -2 मीटर। तो आपका A जो है, A बनेगा आपको 10 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। भाई 1 सेंटीमीटर होता है 10 रेज पावर -2 मीटर्स, जब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो होगा 10 रेज पावर -4। तो आपका A होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दिस इज 10 रेज टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड्स दी गई है, वो है कि कितनी 20 सेंटीमीटर, वो होगा 20 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। एक सॉलिनॉइड है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स n है, n1 रखूंगा मैं, वो दिया गया है 300। दूसरा सॉलिनॉइड है, उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है वो लिया मैंने 400। एक का n1 लिया है वो है 300, दूसरे का n2 लिया है वो है 400। हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन। कोई आप में बोल सकता है फार्मूला, कल ही पढ़ा मैंने, शाबाश, जरा आप मारिए बताओ। वेरी गुड, म्यू नॉट n1 n2 a, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो m हो गया बराबर म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाय l। दिस इज द फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। कल पढ़ा था ना लास्ट क्वेश्चन। तो लगा भाई वैल्यू, m हो गया बराबर म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, फार्मूला इसका वैल्यू पता है आपको, इंटू n1, बोलो n1 कितना बच्चों, n1 है 3 इंटू n2 है 400, 300 इंटू 400 इंटू a जो है दैट इज 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय आपका जो l है 20 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको कैलकुलेट करो। दिस इज m इज इक्वल टू, पहले हम ये जीरोस पीरोस खत्म करेंगे बच्चों। ये है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2, है ना। ये 300 है, 300 हो गया 3 इंटू 10 रेज पावर 2 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। 20 हो गया 2 इंटू 10 रेज पावर -2। देखो ये बन गया m इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, यहां देखो -7 -3 हो गया -10, ये है 10 रेज टू पावर -10 इंटू 10 रेज टू पावर 4, यहां देखो बेसदार सेम पावर सारे -3 -7 -3 हो गया -10 इंटू हो गया 4, ठीक है ना, इंटू अब यहां मल्टीप्लाई करो 4 इंटू है 10 रेज इंटू वो हो गया ना, इंटू 4 3 क्या हो गया 12, है ना, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1, ठीक है बच्चों। आगे देखो क्या बनेगा, एक शाबाश
12 4 हजार क्या बन गया? 12 4 हजार, और 12 4 हजार क्या होता है पता नहीं, 48, तो बोल रहे क्यों नहीं? तो m होगा 48 पाई इंटू 10 रेज टू पावर, देखो जब इसको ऊपर लाएंगे ये प्लस बनेगा, प्लस बनेगा, दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा m इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, माइनस 10 से 5 कटाओ तो माइनस 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा m इज इक्वल टू 2 1s are 2 2s are 4 2 4s are 8, है ना? ये बनेगा m इज इक्वल टू 24 इंटू 10 रेज टू पावर 24 पाई, पाई 7 है, 24 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, इसको ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू 24 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1, कोई फर्क है? ठीक है, 10 रेज पावर माइनस 1 नीचे आएगा, दिस इज m इज इक्वल टू 24 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा m इज इक्वल टू 2.4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 हेनरी, ठीक है? सिंपल कैलकुलेशन किया, ये फॉर्मूला लगाई हमने, then we calculated it. Very good, Maria. Okay, this completes this beautiful question. The mutual inductance between two coils is 1.25 Henry. हमारे पास दो coils है, उनमें जो म्यूचुअल इंडक्शन दिया गया है वो है 1.25 हेनरी, तो m लिखो, m किसके बराबर है? 1.25 हेनरी। यहां देखो, if the current in the primary changes at the rate of 80 एम्पियर पर सेकंड, प्राइमरी में करंट चेंज होगी एट द रेट ऑफ 80 एम्पियर पर सेकंड, डी आई बाई डी टी कितना है? 80 एम्पियर पर सेकंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इज, चलिए लेट अस डू दिस। चलो, करंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स दिया गया है 1.25 हेनरी, कितना दिया गया? 1.25 हेनरी, लिखा ना मैंने? तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट है दैट चेंजेस एट द रेट ऑफ, दैट मींस डी आई बाई डी टी, वो कितना है? 80 एम्पियर पर सेकंड। देखो, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होती है, ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी में, तो आपको ई निकालना है। हम इस ई का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये याद रखना, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ई हो गया बराबर एम डी आई बाई डी टी, तो वैल्यू लगाएंगे, ई हो गया एम, एम कितना है शाबाश? 1.25 इंटू डी आई बाई डी टी जो है वो है 80, चलिए मल्टीप्लाई करो, ये है 0, 8 5 जार इज 40, 4 8 2 जार 16, 16 प्लस 4 हो गया 20, यहाँ 2 आया, 8 1 जार 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, डेसिमल आएगा 2 के बाद 1 and 2, दिस इज सिंपली E इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। कितने हो गए? बड़ी बार एक बार एमयू में आया है, सिंपल क्वेश्चन, मैं यहीं पर करूंगा इसको। When a number of turns in a coil is doubled without any change in the length of the coil, its self inductance is। एक सोलेनॉइड लेंगे, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सपोज इस पे 4 टर्न्स है, इसके टर्न्स मैंने डबल कर दिए, डबल कर दिए, तो आपको दिखना है इट सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स, आपको यहां ख्याल में रखना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, आपको फार्मूला याद है, वहां पर जो L था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो हमारा ऐसे, चलो हम करेंगे, लेट्स डू दिस। कॉइल सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड भी कॉइल है, कॉइल है, जो सेल्फ इंडक्शन होता है L, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल के लिए, एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है L1 होगा प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, L1 क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर, L2 होगा प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, L1 होगा प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर,
L2 होगा प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर. The square of the number of turns of a coil is directly proportional to the self inductance of the coil. तो डिवाइड करो भाई. This is L2 by L1. This will be equal to N2 square divided by N1 square. इसका मतलब है L2 by L1 होगा N2 by N1 का होल स्क्वायर. L2 by L1 होगा N2 by N1 का होल स्क्वायर. यहां देखो इनिशियली कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N1, मगर N2 जो है वो है इसका डबल, है ना. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डबल, हमें सेल्फ इंडक्शन बताना है. इनिशियल सेल्फ इंडक्शन L1, फाइनल क्या था? L2. हम लिखेंगे हियर N2 is equal to twice N1. N2 is equal to twice N1. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा L2 divided by L1 is equal to, शाबाश, इसके बदले क्या लिखेंगे? N2 के बदले twice N1 divided by N1 whole square. This N1 goes. This is L2 by L1 is equal to 4. This is L2 is equal to 4 times L1. इसका मतलब है जो सेल्फ इंडक्शन है वो इंक्रीज होगा 4 times. ठीक है? This completes question number 10.